We want to think once again of a weapon that God has given us by which we can overcome our spiritual enemy. हम एक महत्वपूर्ण हथियार पर विचार करना चाहते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जिसके द्वारा हम अपने आत्मिक शत्रु शैतान पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। And that is the weapon of His Word. और वह हथियार उसका वचन है। God's Word is like a seed that brings us to being born again. 1 Peter 1:23. परमेश्वर का वचन एक बीज की तरह है जो हमें नया जन्म देता है। पहला पत्रस 1:23। We also saw in 1 Peter chapter 2 the early verses of how God's Word is like milk that helps us to grow. हमने पहला पत्र 2:2 से हम सीखते हैं कि परमेश्वर का वचन दूध की तरह है जो हमें बढ़ने में मदद करता है। God's Word changes us. परमेश्वर का वचन हमें बदलाव लाता We है। also see in Ephesians in chapter 6 that God's Word is like a sword. हम इफिसियों 6 में यह भी देखते हैं कि परमेश्वर का वचन तलवार की तरह है। The sword of the Spirit with which we can fight against Satan. आत्मा की तलवार जिसके साथ हम शैतान से लड़ सकते हैं। Ephesians 6 and verse 17, the sword of the Spirit which is the Word of God. और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। इफिसियों 6:17। It's a wonderful weapon God has given us to resist the attacks of Satan. यह एक अद्भुत हथियार है जो परमेश्वर ने हमें शैतान के हमलों के विरोध करने के लिए दिया है। Many believers are discouraged. बहुत से विश्वासी निराश हैं। Do you know why? क्या आप जानते हैं क्यों? Because they don't know how to use this sword when Satan comes attacking them with discouragement. क्योंकि वे नहीं जानते कि जब शैतान उन पर निराश होने का हमला करता है तो इस तलवार का उपयोग कैसे करें। Many believers live under condemnation and feelings of guilt. कई विश्वासी दंड और अपराध बोध की भावनाओं के अधीन रहते हैं। Who gives it to them? Not God. यह उन्हें कौन देता है? परमेश्वर नहीं। Are you living with feelings of guilt and condemnation? क्या आप अपराध बोध और दंड की भावनाओं के साथ जी रहे हैं? Are you feeling uncertain whether God has accepted you, whether God loves you, whether God has forgiven your sin, whether God still remembers your past against you? क्या आप अनिश्चित महसूस कर रहे हैं कि क्या परमेश्वर ने आपको स्वीकार किया है? क्या परमेश्वर आपसे प्रेम करता है? क्या परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा किया है? क्या परमेश्वर अभी भी आपके खिलाफ आपके अतीत को याद रखता है? These are the ways in which Satan harasses believers. ये कुछ तरीके हैं जिनसे शैतान विश्वासियों को परेशान करता है। And believers are weighed down around the world with a guilt which they should not be bearing. और विश्वासी संसार भर में उस अपराध बोध के बोझ तले दबे हुए हैं जो उन्हें नहीं उठाना चाहिए। How can they overcome Satan? How can you overcome Satan? वे शैतान पर कैसे विजय पा सकते हैं? आप शैतान पर कैसे विजय पा सकते हैं? Whatever feelings that come to draw you away from God, जो भी भावनाएं आपको ईश्वर से दूर करने के लिए आती है, discouragement, condemnation, guilt feelings, every one of these can be overcome if you can take the Word of God as a weapon. निराशा, दंड, अपराध बोध, इन सभी को दूर किया जा सकता है यदि आप ईश्वर के वचन को एक हथियार के रूप में ले सकते हैं। For example, supposing you are not sure whether Jesus Christ is accepted. उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप सुनिश्चित नहीं है कि यीशु मसीह ने आपको स्वीकार किया है। Supposing the devil comes to you and says, "Oh yes, you think Jesus has accepted you, but Jesus is far too holy to accept a sinner like you." मान लीजिए कि शैतान आपके पास आता है और कहता है, अरे हाँ, आपको लगता है कि यीशु ने आपको स्वीकार कर लिया है। आप जैसे पापी को स्वीकार करने के लिए यीशु बहुत पवित्र है। What are you going to do when he tells you that? जब वो आपको बताएगा तो आप क्या करने जा रहे हैं? Are you going to argue with him? I tell you, you'll be defeated. क्या आप उससे बहस करने जा रहे हैं? मैं आपको बता दूं, आप हार जाएंगे। You can never argue with Satan. He's far too clever for you. आप शैतान के साथ कभी भी बहस नहीं कर सकते, वह आपसे बहुत चालाक है। You know when Satan tempted even Jesus Christ, saying to him, "If you are the Son of God, turn these stones into bread." आप जानते हैं कि जब शैतान ने यीशु मसीह को यह कहते हुए परीक्षा दी थी, यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो इन पत्थरों को रोटी में बदल दें। Matthew 4 verse 3. मत्ती 4:3। He questioned, "Are you really the Son of God?" उसने यीशु को यह प्रश्न किया, क्या तुम सचमुच परमेश्वर के पुत्र हो? And if he could put such a question to Jesus Christ himself, यदि वो स्वयं यीशु मसीह को ऐसा प्रश्न कर सकता है, you think Satan will not try those questions with you? तो क्या आपको लगता है कि शैतान आपके साथ उन प्रश्नों का परीक्षण नहीं करेगा?
Of course he will. He'll make you doubt whether you're a child of God. बेशक वह करेगा, वह तुम्हें संदेह में डालेगा कि तुम परमेश्वर की संतान हो या नहीं। How can we overcome it? हम इससे कैसे उबर सकते हैं? We need the word of God. Here is a word which you could use. हमें परमेश्वर की वचन की आवश्यकता है। यहाँ एक वचन है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। John chapter 6, verse 37. Jesus said, "The one who comes to me, I will certainly not cast out." यूहन्ना 6:37, यीशु ने कहा, जो मेरे पास आएगा मैं उसे निश्चय न निकालूंगा। When I was a young boy and I asked Jesus to come into my life, जब मैं एक छोटा बच्चा था तब मैंने यीशु को कई वर्षों तक मेरे जीवन में आने के लिए कहा था। for many years, not days, not months, but years, I lived in doubt whether Christ had really accepted me. दिन नहीं, महीने नहीं, बल्कि वर्ष मैं इस संदेह में जी रहा था कि क्या मसीह ने वास्तव में मुझे स्वीकार किया था। And all those years in which I lived in doubt, I did not make any spiritual progress in my life. उन सभी वर्षों में जिनमें मैं संदेह में रहा, मैंने अपने जीवन में कोई आत्मिक प्रगति नहीं की। And it's probably like that with you. और शायद आपके साथ भी ऐसा ही है। But a day came in my life over 38 years ago when I believed this word. लेकिन मेरे जीवन में एक दिन आया 38 साल पहले जब मैंने इस वचन पर विश्वास किया And था I could say to Satan, Jesus has accepted me just as I am. और मैं शैतान से कह सकता था, यीशु ने मुझे वैसे ही स्वीकार कर लिया है जैसा मैं हूँ। Because he said, the one who comes to me, I will never cast out. क्योंकि उसने कहा है, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। And I said, Lord Jesus, I have come to you. Today onwards, I believe that you have not cast me out. और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु यीशु, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, आज से मुझे विश्वास है कि तुमने मुझे नहीं निकाला है। And it was like dropping an anchor. I have never drifted from that position for 38 years. यह एक लंगर को छोड़ने जैसा था। मैं 38 साल से उस स्थिति से कभी नहीं हटा। I want you to take that word and believe from today that if you have come to Jesus, it doesn't matter if you're the greatest sinner in the world. If you have come to him, he says, I will certainly not cast you. मैं चाहता हूं कि आप उस वचन को ले और आज से विश्वास करें। यदि आप यीशु के पास आए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप संसार के सबसे बड़े पापी हैं। यदि तुम उसके पास आए हो तो वो कहता है, मैं तुम्हें निश्चय नहीं निकालूंगा। There's a certainty about it. इसके बारे में एक निश्चितता है। You don't have to believe the devil's lies anymore. अब आपको शैतान के झूठ पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। Tell the devil, Jesus says he has certainly accepted me. शैतान से कहो, यीशु कहते हैं कि उन्होंने मुझे निश्चित रूप से स्वीकार किया है। Now, who are you going to believe from today onwards? Jesus or the devil? That's your choice. अब आप आज से किस पर विश्वास करने वाले हैं, यीशु या शैतान पर? यह तुम्हारा फैसला है। If you want to continue to believe the devil, then nobody can help. अगर आप शैतान पर विश्वास करना जारी रखना चाहते हैं तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। But if you will believe the word of God, take up that sword, the devil will flee from you. परंतु यदि तुम परमेश्वर के वचन की प्रतीति करोगे तो उस तलवार को उठा लो तो शैतान तुम्हारे पास से भाग जाएगा। And you'll never have a doubt again for the rest of your life that Christ is accepted. और आपको जीवन भर फिर कभी संदेह नहीं होगा कि मसीह ने आपको स्वीकार कर लिया है। Now, some of you may have another problem. अब आप में से कुछ लोगों की समस्या, एक और समस्या हो सकती है। You may feel that there's certain sins that you committed in your past life which were very, very bad, very serious. आप महसूस कर सकते हैं कि आपने अपने अतीत में कुछ ऐसे पाप किए हैं जो बहुत बहुत बुरे, गंभीर थे। Maybe some of you have committed adultery or murder, or it could be horrible things. हो सकता है कि आप में से किसी ने व्यभिचार या हत्या की हो, या यह कोई भयानक बात भी हो सकती है। And you may feel, well, some of the less serious sins God has forgiven you, but some of those horrible, wicked things which nobody knows but you. आप महसूस कर सकते हैं परमेश्वर ने आपको कुछ कम गंभीर पापों को माफ कर दिया है, लेकिन उनमें से कुछ भयानक दुष्ट बातें जिन्हें आपके अलावा कोई नहीं जानता। Does God always remember it when he thinks of you? क्या परमेश्वर हमेशा उन्हें याद करते हैं जब वे आपके बारे में सोचते हैं? Is it like that? You know how it is, supposing somebody has killed your son and you're gracious enough to forgive him. क्या यह ऐसा है? मान लीजिए कि किसी ने आपके बेटे को मार डाला है और आप उसे क्षमा करने के लिए पर्याप्त दयालु हैं। Yet every time you see him, you will remember, this is the man who killed my son.
even if you're forgiven. तो भी हर बार जब तुम उसे देखोगे तो तुम्हें स्मरण होगा कि वही व्यक्ति है जिसने मेरे पुत्र को मार डाला है, भले ही तुमने उसे क्षमा कर दिया हो। Does God look at us like that? क्या परमेश्वर हमें ऐसे देखता है That every time He sees us, He thinks of us as the one who did all those wicked things 20 years ago or 10 years ago or last week? कि हर बार जब वह हमें देखता है तो वह हमें वह समझता है जिसने 20 साल पहले या 10 साल पहले या पिछले सप्ताह उन सभी दुष्ट कामों को किया What था। does the Bible say? The answer again is to know the Word of God. बाइबल क्या कहती है? उत्तर फिर से परमेश्वर के वचन को जानना है। Satan will come to you with all these torturing thoughts. शैतान इन सभी कष्टदायक विचारों के साथ तुम्हारे पास आएगा। His aim is to keep you far away from God. उसका उद्देश्य आपको ईश्वर से दूर रखना है। You cannot overcome him with argument or psychology or any such thing. आप उसे तर्कों या मनोविज्ञान या ऐसी किसी भी चीज से दूर नहीं कर सकते। You've got to quote the Word of God. आपको परमेश्वर के वचन का हवाला देना होगा। You know, when Jesus was tempted by Satan, what he said? He only said, "It is written." God's Word says this. आप जानते हैं कि जब शैतान द्वारा यीशु की परीक्षा ली गई थी तो उसने क्या कहा? उसने केवल इतना कहा, लिखा है। The second time, Satan came to him with another temptation, and Jesus said, "God's Word says this." दूसरी बार शैतान एक और प्रलोभन के साथ उसके पास आया और यीशु ने कहा, परमेश्वर का वचन यह कहता है। Satan came to him quoting a word of God, and Jesus said, "But it also says in God's Word this." तब शैतान परमेश्वर के एक वचन का हवाला देते हुए उसके पास आया, परंतु यीशु का उत्तर था, परंतु परमेश्वर का वचन यह भी कहता है। Every single time in those 3 temptations in the wilderness, Jesus overcame Satan only by quoting Scripture. हर बार जंगल में उन 3 प्रलोभनों में यीशु ने केवल पवित्र शास्त्र का हवाला देते हुए शैतान पर विजय प्राप्त की। No discussion, no argument, nothing. कोई चर्चा नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई कुछ भी नहीं। Eve was the one who discussed and argued with Satan, and you know what happened to her? हव्वा वह थी जिसने शैतान के साथ चर्चा की और बहस की, और आप जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ? She fell. वो पाप में गिर गई। Jesus never did that. He just quoted the Word of God. यीशु ने ऐसा कभी नहीं किया, उसने हमेशा परमेश्वर के वचन का हवाला दिया है। And that's what you need to do too. और आपको भी यही करने की आवश्यकता है। Here is a promise. Hebrews chapter 8 and verse 12. यहाँ एक प्रतिज्ञा है। परमेश्वर कहता है, मैं उनके अधर्म को कामों को पर दया करूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। इब्रानियों 8:12। God says, "I will be merciful to their iniquities, and I will remember their sins no more." परमेश्वर कहता है, मैं उनके अधर्म के कामों पर दया करूंगा और मैं उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। Here's a promise. Not only I will forgive your sins, that itself is wonderful. न केवल मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा, यह अपने आप में अद्भुत है, But I will not remember your sins anymore against you. लेकिन मैं तुम्हारे पापों को अब और स्मरण नहीं रखूंगा। That means when God looks at me, He does not hold against me any of the sins I've committed in the past. इसका अर्थ है, जब परमेश्वर मेरी ओर देखता है तो वह मेरे द्वारा अतीत में किए गए पापों में से किसी को भी मेरे विरुद्ध नहीं रखता है। Not the ones I committed 40 years ago and not the ones I committed yesterday. वह नहीं जो मैंने 40 साल पहले किए थे और वो नहीं जो मैंने कल किए हैं। If I have confessed my sins, the Bible says, God is faithful and righteous to forgive us our sins. यदि मैंने अपने पापों को स्वीकार कर लिया है तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। The blood of Jesus cleanses us from all sin. यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। These are powerful weapons, these words of God, like swords. यह शक्तिशाली हथियार है। परमेश्वर के ये वचन तलवार के समान है। We can say the Bible is like an armory with many swords. And you need to take out the appropriate one when the devil comes to you with one type of attack. हम कह सकते हैं कि बाइबल कई तलवारों के साथ एक शास्त्रागार की तरह है, और जब शैतान एक या दूसरे प्रकार के हमले के साथ आपके पास आता है तो आपको एक उपयुक्त हथियार को बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। When he reminds you that you have sinned so much in the past, you can say, well, the blood of Jesus has cleansed me from all sin. जब वह आपको याद दिलाता है कि आपने अतीत में इतना पाप किया है तो आप कह सकते हैं, ठीक है, यीशु के खून ने मुझे सभी पापों से शुद्ध कर दिया है। Satan is a great accuser. शैतान एक बड़ा दोष लगाने वाला है। He seeks to accuse and torment and harass believers, preventing them from being happy.
वह विश्वासियों को आनंदित होने से रोकने के लिए दोष लगाना, पीड़ा देना और परेशान करना चाहता है। And so many believers go around with long faces. इतने सारे विश्वासी उदास चेहरे के साथ घूमते हैं। That's not God's will for you, my friend. यह तुम्हारे लिए परमेश्वर की इच्छा नहीं है मेरे You दोस्त। think God wants you to go around this world with a long face? How can you ever draw anyone else to Christ if you go around with a long face? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस संसार में एक उदास चेहरे के साथ घूमें? यदि आप उदास चेहरे के साथ घूमते हैं तो आप किसी को मसीह की ओर कैसे आकर्षित कर सकते हैं? How can you be happy? You can't psychologically work up happiness. आप कैसे खुश रह सकते हैं? आप मनोवैज्ञानिक रूप से आनंद का काम नहीं कर सकते। You must know that your sins are forgiven. You've been accepted by Christ. आपको पता होना चाहिए कि आपके पाप क्षमा किए गए हैं, आपको मसीह ने स्वीकार कर लिया है। And not only that, God will not remember your sins anymore. और इतना ही नहीं, परमेश्वर अब आपके पापों को स्मरण नहीं रखता। Now I want to lead you one step further. अब मैं आपको एक कदम आगे ले जाना चाहता हूँ। It's not only that God forgives our sin. It's not only that He does not remember our sins anymore. ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है, ऐसा नहीं है कि वह अब हमारे पापों को स्मरण नहीं रखता। There is a word called justified used in Romans. बल्कि वह कुछ और करता है। रोमियो में धर्मी ठहराए गए नाम का एक शब्द इस्तेमाल होता है That God has justified us. कि ईश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है। In Romans 5 verse 1 it says, having been justified by faith. You know what that word justified means? It means declared righteous. That means God has declared you to be a righteous person. रोमियो 5:1 यह कहता है, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। क्या आप जानते हैं धर्मी ठहराए जाने का हिंदी में क्या मतलब होता है? इसका अर्थ है धर्मी घोषित। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने आपको एक धर्मी व्यक्ति घोषित किया है। Now, let's use an illustration. Supposing I've been accused of a crime and I've been taken to court and the judge says, okay, you are forgiven. अब आइए एक उदाहरण का उपयोग करें। मान लीजिए कि मुझ पर एक अपराध का आरोप लगाया गया है और मुझे अदालत में ले जाया गया है। न्यायाधीश कहते हैं, ठीक है, आपको क्षमा कर दिया गया है। I'm happy because I come out of the court forgiven, but I still hang my head in shame because I'm accused of a terrible crime. मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे माफ करके कोर्ट से बाहर आ गया, लेकिन फिर भी मैं शर्म से सिर झुकाता हूँ क्योंकि मुझ पर एक भयानक अपराध का आरोप है। But on the other hand, if the judge says, well, after considering all the evidence, I don't believe you're guilty at all. लेकिन दूसरी ओर अगर न्यायाधीश कहता है, ठीक है, सभी सबूतों पर विचार करने के बाद मुझे विश्वास नहीं होता कि आप बिल्कुल भी दोषी है। There's no need of being forgiven. You're righteous. Go home righteous. क्षमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप धर्मी हैं, तुम घर जा सकते हो। Then I come out of the court not just as a forgiven criminal, but as one with my head lifted up. फिर मैं अदालत से बाहर आता हूँ न केवल एक क्षमा किए गए अपराधी के रूप में, बल्कि मेरे सिर उठाकर धर्मी। This is the meaning of justification. और यही धर्मी ठहराए जाने का अर्थ है। It is more than forgiveness. यह क्षमा करने से बढ़कर है। And many Christians haven't understood it. और बहुत से मसीह इसे नहीं समझ पाए हैं। God not only forgives, He justifies. He declares me righteous. परमेश्वर न केवल क्षमा करता है, वह हमें धर्मी ठहराता है, वह मुझे धर्मी घोषित करता है। In other words, He clothes me with the righteousness of Christ. दूसरे शब्दों में वह मुझे मसीह की धार्मिकता के वस्त्र पहनाता है। He puts the goodness of Christ over me as my dress. वह मेरी पोशाक के रूप में मसीह की भलाई को मुझ पर Can you रखता think of है। it? The goodness of Christ clothing you. क्या आप इसके बारे में सोच सकते हैं? मसीह की भलाई आपको वस्त्र पहनाती है। How do you look when you are clothed with the goodness of Christ? जब आप मसीह की भलाई के वस्त्र पहने हुए हैं तो आप कैसे दिखते हैं? I'll tell you, perfect. मैं आपको बताऊंगा, निष्कलंक। Do you believe it? Oh, that's where the problem lies. क्या आप इसमें विश्वास करते हैं? ओह, यही वह जगह है जहाँ समस्या है। You don't believe it. आप इस पर विश्वास नहीं करते Then it'll never be true. हैं, तब यह आपके लिए कभी सच नहीं होगा। It says justified by faith. ये विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। Do you believe God puts the goodness of Christ over you? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मसीह की भलाई को आप पर रखता है? Thank Him for it. And resist Satan with this weapon of the Word of God.
इसके लिए उसका धन्यवाद करे और परमेश्वर के वचन के इस हथियार से शैतान का विरोध करे। Say, I have been accepted by Christ. कहो, मुझे मसीह ने स्वीकार कर लिया है। Say it right now. इसे अभी कहो, I've been accepted. मुझे स्वीकार कर लिया गया है, I've been forgiven. मुझे क्षमा कर दिया गया है। God does not remember my past against me anymore. परमेश्वर अब मेरे खिलाफ मेरे अतीत को याद नहीं करते हैं। I have been justified. मुझे धर्मी ठहराया गया है। I am a righteous person, clothed with the goodness of Christ over my life. मैं एक धर्मी व्यक्ति हूँ जो मेरे जीवन पर मसीह की भलाई को पहने हुए हूँ। I am just as precious to God as Jesus himself is. मैं परमेश्वर के लिए उतना ही अनमोल हूँ जितना स्वयं यीशु मसीह है। These are the weapons with which Satan will flee from us. ये वे हथियार है जिनसे शैतान हमसे दूर भागेगा।